Today we are starting nuclear reactor, cutting edge technology of modern days. But before starting the topic, let us see the questions asked from this topic in last few years of board exam. Observe function of coolant, function of heavy water, function of moderator, and this question, heavy water is a suitable moderator for reactor. Why? Although ordinary water can also slow down the neutrons. Actually, all these are about the same material, heavy water or water. Coolant and moderator both are water. In some reactors, graphite rod is also used as moderator. So yes, there is a question in 2010, function of graphite rod. So this part is actually about the water or heavy water used in reactor, its function, its use as coolant, as moderator, and just look at the years it is being asked. From 2099 to 2016. What does it mean? That in 2019 there was no question from this part. That means this part is quite important for this year. Now come to the second segment of this topic. Material which is used as in control rods, function of cadmium rod, function of all these three questions are from the part controlling of the nuclear chain reaction, and this is also being asked from 2004, 14, 10, then this is 2018. तो ये क्वेश्चन क्योंकि 2020 में आ चुका है तो हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन इस साल के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता। पर कूलेंट या मॉडरेटर का फंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए भी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो इससे ज़्यादा पूछा गया है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड फिशन बॉम्ब, डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, इक्वेशन ऑफ न्यूक्लियर फिशन ऑफ यूरेनियम 235 which is actually the main point of nuclear reactor, and why neutron are ideal for nuclear fission. Neutrons are ideal for nuclear fission. ये पार्ट न्यूक्लियर रिएक्टर से है और ये पार्ट 2005, 15, 10, 18, 3, 6, 4 इतनी फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट फॉर्मेट में। पर एक्चुअली ये पार्ट क्या पूछ रहा है? न्यूक्लियर रिएक्टर और उसके पार्ट्स के बारे में मेनली पूछ रहा है। तो ये पार्ट भी 2020 में नहीं पूछा गया है, तो ये पार्ट भी 2020 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिन पार्ट्स को हम इम्पोर्टेंट कह रहे हैं उसको हम हाईलाइट कर देंगे कि रिवीजन में उसको थोड़ी प्रायोरिटी मिले। ठीक, इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूजन से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन से ये क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्योंकि हम इसे नेक्स्ट क्लास में लेंगे तो इसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ। हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ प्लेस वेयर न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस इज कैरिड आउट in a controlled manner and nuclear energy is harnessed. It's a place where nuclear fission process is carried out in a controlled manner and we get nuclear energy from this nuclear process called fission. Mainly this energy is used to produce electricity, but nuclear reactors are also used to fulfill research purposes in industry, in agriculture, in food processing, in medical science, in space missions. That means this energy is very, very important. Cutting edge technology of today.
So this topic is very good topic for your project work of class 12th also. Very good project topic. तो अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर तो समझ गए हम, न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस कंट्रोल्ड मैनर में प्रोसेस किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। अब जब इस न्यूक्लियर एनर्जी को जो हम लोग न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस से पा रहे हैं, when this nuclear energy is used to produce electrical energy, then we call the whole setup as nuclear power plant. ठीक, अब क्वेश्चन ये उठता है कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या है और इसको हम कैसे पा सकते हैं। So when nucleons, protons and neutrons come together to form a system, प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं तो उनका साथ रहना एक स्ट्रेंज थिंग है ना। जब वो साथ आते हैं तो उनको कोई बांध कर न्यूक्लियस में रखता है। जो उन्हें बांध कर न्यूक्लियस में रखता है वो एक अलग तरीके का फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनसे बिल्कुल अलग। उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। और जब ये सिस्टम बांध के रखता है तो जो एनर्जी इनको बांध कर रख रही है उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। वो बाइंडिंग एनर्जी ही एक्चुअली न्यूक्लियर एनर्जी है। जब हम किसी न्यूक्लियस को तोड़ते हैं तो वो बाइंडिंग एनर्जी ही न्यूक्लियर एनर्जी के फॉर्म में हमको वापस मिल जाती है। ये तो एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, द थिंग्स आर नॉट सो सिंपल। लेकिन अगर आपको कहें कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, तो न्यूक्लियर एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द प्रोटॉन्स आर रिपेलिंग ईच अदर। फिर भी इतनी क्लोज प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। तो अब न्यूक्लियर एनर्जी को पाने के दो रास्ते हैं। देयर आर टू प्रोसेसेस थ्रू विच वी गेट न्यूक्लियर एनर्जी, फिशन एंड फ्यूजन। व्हेन अ हेवी न्यूक्लियस इज ब्रोकन इन टू पार्ट्स, दिस बाइंडिंग एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी। और जब दो lighter nuclei fuse at very high temperature to form a heavy nucleus, तब भी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये दोनों प्रोसेस न्यूक्लियर एनर्जी को पाने के तरीके हैं। लेकिन हमारे आज के टॉपिक न्यूक्लियर रिएक्टर में आज की तारीख में जितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो सब न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं टू गेट न्यूक्लियर energy. So what is nuclear reactor? It's a place where nuclear fission process is carried out in controlled manner to get nuclear energy. And when this nuclear energy is used to produce electricity, then we call this establishment nuclear power plant. Now before we enter a nuclear reactor to understand its structure, its parts, its functions, पहले हमको न्यूक्लियर फिशन जानना चाहिए कि क्या है। हम बात कर चुके हैं, when a heavy nucleus is broken into lighter nuclei, energy, huge amount of energy is liberated and this process is called nuclear fission. लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि न्यूक्लियर फिशन क्या है। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आर बॉम्बार्डेड ओवर अ हेवी न्यूक्लियस। और ये हैवी न्यूक्लियस जो बहुत सारे रीजंस की वजह से इसमें प्रायोरिटी पर है, दैट हैवी न्यूक्लियस इज यूरेनियम 235 न्यूक्लियस। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन is bombarded over uranium 235 atom. Uranium 235 nucleus absorbs this neutron and forms a compound nucleus which is in its excited state. Compound nucleus जैसे इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्साइटेड स्टेट में जंप करते हैं जब एनर्जी गेन करते हैं,
वैसे ही न्यूक्लियस की भी एनर्जी स्टेट्स होती हैं। तो ये कंपाउंड स्टेट अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, तो हमें पता है कि एक्साइटेड स्टेट में है तो ये अनस्टेबल है उस जगह पर, और ये वापस अपनी नॉर्मल स्टेट को गेन करने की कोशिश करेगा। In 10 to the power minus 14 seconds, this nucleus breaks into two smaller, almost equal halves. But these smaller nuclei are still unstable, and instantaneously they emit 2 or 3 neutrons to attain stability. Sometimes these smaller nuclei are not stable even emitting neutrons. So they further emit beta and gamma radiations and then gain stability. तो अब ये तीन स्टेप्स में हो गया न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस। पहला प्रोसेस, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन स्ट्राइक विद यूरेनियम 235 एटम। लेट अस ऑब्जर्व दिस होल प्रोसेस केयरफुली। पहला स्टेप क्या हो गया? Slow moving neutron strikes with uranium 235 atom. Uranium 235 atom absorbs this neutron and becomes uranium 236, a compound nucleus. It is unstable. It breaks into two almost equal halves, barium and krypton. Barium and krypton almost instantaneously emit neutrons to gain stability, and in this process of fission huge amount of energy is liberated. Now if these three neutrons further strike with these first generation neutron strike with the uranium 235 atoms, more uranium 235 atoms, and break them also. Then again two smaller nuclei and neutrons and huge amount of energy will be liberated, and the second generation neutron will further carry this process. Then this process of fission will be known as chain reaction. If this process is not controlled, then this will cause huge destruction. इतनी एनर्जी लिबरेट होती है कि ये ह्यूज डिस्ट्रक्शन करता है। लेकिन अगर हम यहीं पर इन तीन न्यूट्रॉन्स को इनका नंबर कंट्रोल कर ले तो ये जो फिशन प्रोसेस है ये भी कंट्रोल हो जाएगा, और ये जो एनर्जी एकदम से चेन रिएक्शन में एक साथ ह्यूज एनर्जी आती है वो हम धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसे हम पीसफुल पर्पसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम इन न्यूट्रॉन्स के नंबर को, इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके कंट्रोल करते हैं और इस प्रोसेस को स्लो कर देते हैं और इस एनर्जी के एमिट करने के रेट को कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, विच इज़ एक्चुअली कैरिड आउट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर फिशन क्या है? हैवी न्यूक्लियस का स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूटना, साथ में न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इफ दीज न्यूट्रॉन्स नंबर इज कंट्रोल्ड, then this process can be carried out in a controlled manner and the energy liberated will be controlled and it can be used in useful peaceful purposes. तो न्यूक्लियर रिएक्टर इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल्ड मैनर में कैरी करता है, कंडक्ट कराता है और एनर्जी को डिफरेंट तरीके से यूज़ करता है, न्यूक्लियर एनर्जी को। तो now we move inside the nuclear reactor. Before starting nuclear reactor structure, it's better you write this equation. This equation is frequently asked in your board paper. Neutron, when absorbed by uranium 235, becomes uranium 236. Then it breaks into barium and krypton along with 3 neutrons and a huge amount of energy. और एक इंटरेस्टिंग, बहुत सारे लोगों को पता होगा फैक्ट
In 1939, German scientist Otto Hahn, along with its two colleagues, discovered this phenomena of nuclear fission by breaking uranium-235 by bombarding it with neutron. तो 39 में ऑटो हॉर्न ने इस फिनोमेना को डिस्कवर किया था. अब चलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर. ये है हमारा एक रफ सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर. ठीक, और हमारी कहानी शुरू होती है यहाँ से. इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर कोर. यहाँ पर जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर का, वो है न्यूक्लियर फ्यूल यानी यूरेनियम 235. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूल. Uranium 235 is used as a fuel in nuclear reactors. ठीक? But uranium 235 is used because it splits into smaller nuclei to produce nuclear energy in an easy way. लेकिन एक्चुअली यूरेनियम 235 खुद में बहुत मुश्किल है निकालना. जो रॉ यूरेनियम मिलता है हमको नेचर में, वो यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 और ट्रेसेस ऑफ यूरेनियम 234 का मिक्सचर होता है. और उस रॉ यूरेनियम से, तो रॉ यूरेनियम में कितने हिस्से होते हैं बेटा? यूरेनियम 235 का बहुत छोटा हिस्सा होता है, 0.7% होता है यूरेनियम 235, विच इज़ ईजिली फिशनेबल. ज़्यादा हिस्सा होता है यूरेनियम 238 का, जो 99.3% अप्रॉक्सीमेटली होता है. और बहुत ट्रेसेस कुछ मिलते हैं यूरेनियम 234 के. तो जो फिशनेबल है ईजिली, वो तो बहुत कम है, लेकिन ये आसानी से तोड़ा जा सकता है. इसलिए यही हमारा न्यूक्लियर फ्यूल है. और इसे हम नेचुरल रॉ यूरेनियम से डिफरेंट तरीक़ों से एक्सट्रैक्ट करते हैं, या डिफरेंट तरीके निकालते हैं कि हम यूरेनियम 235 को मेन फ्यूल की तरह यूज़ कर पाए. तो हमारा मेन फ्यूल क्या है? यूरेनियम 235. कैसे मिलता है? फ्रॉम द रॉ यूरेनियम. रॉ यूरेनियम क्या है? इट्स मिक्सचर ऑफ 3 आइसोटोप्स. ये क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स. ठीक, तो रॉ यूरेनियम इज प्रोसेस्ड. अब ध्यान से समझो इस बात को. इट इज़ प्रोसेस्ड क्योंकि प्योर तो होता नहीं है, तो उसको पहले हम प्योरीफाई करते हैं. एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्मॉल सेरेमिक पेलेट्स. सेरेमिक पेलेट्स, यूरेनियम रेडियो एक्टिव होता है, हार्मफुल रेडिएशन से एमिट करता है. तो यहाँ से एक्चुअली हमारा सेफ्टी सिस्टम मैकेनिज्म भी चालू हो जाता है. ये जो छोटे छोटे यूरेनियम के सिरेमिक पैलेट्स बने, ध्यान से देखो, सिरेमिक पैलेट्स कितने छोटे, 12 मिलीमीटर की इनकी डायमीटर लगभग होती है और 1.4 सेंटीमीटर की इनकी लेंथ होती है. ये छोटे छोटे सिरेमिक पैलेट्स के फॉर्म में प्रोसेस करने के बाद रॉ यूरेनियम को हम सिरेमिक पैलेट्स बना लेते हैं छोटे छोटे. और इन सिरेमिक पैलेट्स को एक जर्कोनियम एलॉय होता है, उस एलॉय के, उस मेटल के ट्यूब में इन छोटे छोटे पैलेट्स को हम इस तरीके से इंसर्ट कर देते हैं. इसको थोड़ा सा फोकस करके मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि तुमको समझ आए कि ये क्या हो रहा है. एक मेटल के, जिसका किसका मेटल है, इसको या तो जर्केलॉय बोलते हैं या जर्कोनियम एलॉय बोलते हैं. उस मेटल के ट्यूब में ये छोटे छोटे पैलेट्स इंसर्ट कर दिए. अब ये जो रॉड बनी ना, जिसके अंदर छोटे छोटे यूरेनियम के पैलेट्स हैं, ये क्या कहलाती है? फ्यूल रॉड. अब इस तरीके के बहुत सारे रॉड्स का एक बंडल बनाया जाता है.
और इस तरह के बहुत सारे बंडल्स को मिलाकर हम एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में, उसमें ये बंडल्स, हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स फिट कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो ये तो प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूल को कैसे हम न्यूक्लियर कोर में, रिएक्टर के कोर में, न्यूक्लियर कोर में नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में सेट करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को मैंने लिख दिया है आपके प्रोजेक्ट के नोट्स के फॉर्म में भी, दैट रॉ यूरेनियम इज प्रोसेस्ड एंड it is converted into small ceramic pellets of uranium oxide. These pellets are loaded into zircaloy or zirconium alloy metal tubes. Then hundreds of such tubes, hundreds of such rods form a bundle, and then hundreds of such bundles are inserted into a बिग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर कोर। अभी हम देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर कोर, उसमें एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, ह्यूज सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, वो भी मेटल का होता है। ये एक मेटल पैलेट दूसरे मेटल ट्यूब में, फिर वो दूसरा मेटल ट्यूब एक बड़े ह्यूज स्ट्रक्चर में जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल से बना है। ये सब प्रिकॉशंस है, सेफ्टी मेजर्स हैं। उस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में ये बहुत सारे बंडल्स जो बहुत सारे फ्यूल रॉड से मिलकर बने हैं, उनको हम इंसर्ट कर देते हैं। और ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है मेटल का, उसको हम कहते हैं कैलेंड्रिया। ठीक, तो हमारा पहला पार्ट हो गया न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम 235। काम क्या है इसका? वी break uranium 235, the heavy nucleus, into smaller nuclei to get nuclear energy and neutrons. अब न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पे वापस आ जाते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल बन गया और न्यूक्लियर फ्यूल अब हमने कैलेंड्रिया यानी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको इसकी जो एक्चुअल इनसाइड पिक्चर्स है वो मिलेंगी। उन पिक्चर्स को आप अगर सर्च करोगे तो आपको इस कैलेंड्रिया का एक्चुअल रियल स्ट्रक्चर दिखेगा। ये एक सिलिंड्रिकल ह्यूज स्ट्रक्चर, इसमें ये फ्यूल रॉड्स फिट कर दी। ठीक, अब न्यूट्रॉन्स, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को इन पर बम्बार्ड किया। यूरेनियम 235 टूटा और न्यूट्रॉन्स और एनर्जी लिबरेट हुई। अब ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, ये प्रोसेस में बहुत एनर्जी लिबरेट होती है। वो जो एनर्जी है उसका एक बड़ा हिस्सा जो स्मॉलर न्यूक्लियाई टूट कर बने, उनकी और न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बाहर आता है। तो जो न्यूट्रॉन्स लिबरेट हुए, ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स नहीं थे, ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स थे। अब सबसे पहली प्रॉब्लम आई, फिशन करते हैं ये तो ठीक था, लेकिन ये फिशन इतना आसान नहीं था कि हमने न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया, फिशन हुआ, न्यूट्रॉन्स निकले, 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया, एक न्यूट्रॉन को आगे फिशन के लिए छोड़ दिया, फिर से उसने फिशन किया, फिर से एनर्जी लिबरेट हुई। ये इतना आसान नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस थे फिशन प्रोसेस में। तो मॉडरेटर समझने के लिए ज़रूरी है कि हम चैलेंजेस को समझें कि पहला चैलेंज हमको क्या आया फिशन प्रोसेस में। वो फिशन आगे कंटिन्यू ही नहीं किया, तो वो पहला चैलेंज समझ गए तो हम मॉडरेटर का फंक्शन समझ जाएंगे। जो यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम था, उसमें ज़्यादातर हिस्सा यूरेनियम 238 का था। अब प्रॉब्लम क्या थी कि यूरेनियम 238 कैन बी फिशन्ड बाय फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स ओनली, न्यूट्रॉन्स विच आर हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन 1 MeV. If energy of neutron is less than 1 MeV, then uranium 238 absorbs those neutrons and fission process stops inside the reactor. यूरेनियम 235 के साथ क्या फ़ायदा था? यूरेनियम 235 easily gets fissioned
by slow as well as fast neutrons. दोनों से ये आसानी से ब्रेक हो जाता था, लेकिन इसका परसेंटेज यूरेनियम ओर में बहुत छोटा था, 0.7% ओनली। तो अब हमारे पास दो रास्ते थे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। एक तो रास्ता ये था कि हम यूरेनियम 235 को आसानी से तोड़ सकते हैं, तो हम यूरेनियम के ओर में यूरेनियम 235 को एक्सट्रैक्ट कर लें और यूरेनियम 238 को अलग कर दें, जिससे यूरेनियम 238 जो न्यूट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी के निकल रहे हैं उसमें से बहुत सारे न्यूट्रॉन्स जो उसको एब्जॉर्ब करने में इजी लगे उन्हें एब्जॉर्ब करके फिशन प्रोसेस को रोक ना दे। उसको हम कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, यानी यूरेनियम 235 को एक्सट्रैक्ट कर लेना, यूरेनियम 238 से अलग कर देना। ये महंगा प्रोसेस होता है, एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी भी इसमें लगती है। तो कुछ रिएक्टर्स ऐसा करते हैं कि वो एनरिच्ड यूरेनियम यूज़ करते हैं, लेकिन इंडिया में हमने दूसरा तरीका, और बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स दूसरा तरीका यूज़ करते हैं कि फिशन प्रोसेस न्यूक्लियर रिएक्टर में रुक न जाए, कंटिन्यू रहे। The second method was to slow down the neutron emitted during the fission process, and so much that neutron's energy reduces to a value of 0.03 electron volt only. These slow moving neutrons will break uranium 235 and carry or continue the controlled chain reaction in the reactor. जो मटेरियल न्यूट्रॉन्स को स्लो करने के लिए यूज हुआ उसे हमने नाम दिया मॉडरेटर, और हमने 3 मटेरियल्स को एज अ मॉडरेटर यूज किया। ग्रेफाइट, सिंपल वाटर जो हम लोग पीते हैं, नॉर्मल प्योर वाटर, डीमिनरलाइज्ड प्योर वाटर कहते हैं उसको, मिनरल्स निकाल के एग्जैक्टली प्योर वाटर, और हैवी वाटर ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O। ये क्या है? H2O। तो कुछ रिएक्टर्स ग्रेफाइट यूज़ करते हैं, इसके अपने कुछ नुकसान हैं। कुछ रिएक्टर्स हैवी वाटर यूज़ करते हैं, जो कि इंडिया में कई रिएक्टर्स में यूज़ होता है मेनली, और कुछ रिएक्टर्स नॉर्मल वाटर यूज़ करते हैं, प्योर वाटर। तो सेकंड पार्ट हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बोर्ड के पेपर का, व्हाट इज़ मॉडरेटर। आई थिंक हम समझ गए हैं कि मॉडरेटर क्या है। अब उसको हम कैसे लिखेंगे उसको समझ लेते हैं। So we know that nuclear fission process depends upon neutron absorption by uranium 235 atom. But for this purpose, neutron should have a right speed. Once fission process is initiated by a slow moving neutron, more neutrons are emitted when fission process is taking place. But these neutrons have very high speed. So to keep fission process continue, these neutrons need to be slowed down. So what is moderator? The question is being asked, what is moderator and which materials are used as moderator? Moderator is that material which helps in reducing speed of neutron and carries the fission process uninterrupted in nuclear reactor. Got the point? So which material we use as a moderator? We use simple water, heavy water, and graphite as moderator. Got it? Next important part of the nuclear reactor is coolant.